سامنے والی رو میں بیٹھے اس لڑکے نے مجھے اچھا خاصا پریشان کر دیا تھا۔ اپنی شریر آنکھوں سے وہ مجھے مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ کہا میں 22 سالہ اسکول ٹیچر اور یہ میرا شاگرد جو 10ویں کلاس کا طالب علم تھا۔ میں دانت کچکا کر رہ گئی تھی۔ اب سارے اسٹوڈنٹ کے سامنے اس لڑکے کو کیا کہتی؟ وہ سب سے آخر میں بیٹھا، اس کی توجہ بالکل بھی پڑھائی پر نہیں تھی، جبکہ مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا۔ اسکول جوائن کیے ہوئے ابھی صرف 2 دن ہی ہوئے تھے اس کو۔ پہلا دن میرا 7ویں کلاس کو پڑھانے میں گزرا اور پھر اسکول کے پرنسپل نے مجھے یہ کلاس دے دی تھی۔ سب سے بڑی غلطی تو ہم سے یہ ہوئی تھی کہ میں نے اس اسکول میں پڑھانا شروع کیا تھا جس میں سارے طالب علم لڑکے تھے۔ 10ویں جماعت کی یہ کلاس روم سارے اسٹوڈنٹ سے بھری ہوئی تھی۔ ویسے تو مجھے پڑھانے میں کوئی بھی مسئلہ نہ ہو رہا تھا اگر سامنے بیٹھا یہ لڑکا مجھے ہر وقت دیکھتا نہ رہتا تو۔ دل میں خیال آیا کہ پرنسپل سے اس کی شکایت کرتی ہوں۔ پھر سوچا کہ اگر انہوں نے میرے ہی بارے میں کسی غلط انداز سے سوچا تو میری کیا عزت رہ جائے گی۔ یہی سوچ کر میں اس بات پر عمل نہ کر سکی۔ پھر اسکول چھٹی کے بعد میں سڑک کنارے کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی جب برابر میں آ کر وہی لڑکا کھڑا ہو گیا۔ وہ مجھ سے ذرا فاصلے پر کھڑا تھا۔ پھر دل میں سوچا کہ شاید اس کا گھر بھی اسی سائڈ پر ہو جہاں پر میں جاتی ہوں، تبھی تو یہ روڈ پر کھڑا ہوا ہے۔ اب بس آئی تو میں فوراً ہی اس میں سوار ہو گئی، لیکن میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا اس لڑکے کا وہاں پر نام و نشان بھی نہیں تھا۔ پلک جھپکتے میں وہ کہاں غائب ہو گیا تھا؟ میں اپنی سوچوں میں مبتلا حیران و پریشان سی بیٹھی تھی۔ میرا نام ملیحہ ہے۔ میرا تعلق ایک شریف اور دیندار گھرانے سے تھا۔ ہم 4 بہنیں تھیں، چاروں کے چاروں پردے دار اور نہایت شریف۔ میں گھر میں سب سے بڑی تھی۔ میرے ابا ایک مسجد کے امام تھے۔ یہی وجہ تھی کہ پورے محلے میں ہماری تربیت کا ڈنکا بجتا تھا۔ سب کہتے ہیں کہ امام مسجد کی بیٹیاں کس قدر پردے دار اور نیک ہیں۔ سارے محلے والے جانتے تھے کہ ہم نے کبھی گھر سے باہر اپنی ماں باپ کے بنا اجازت کے قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ محلے پڑوس کا ہر آدمی، ہر عورت ہماری تربیت کی تعریف کرتی اور اس کا سہرا ہمارے ماں باپ کے سر جاتا تھا۔ لیکن اب گھر کے حالات بہت ہی مختلف ہو گئے تھے۔ ایک ابا کی معمولی سی تنخواہ میں گھر کا گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے بھی انٹر تک تعلیم حاصل کی تھی۔ گھر میں امی اور چھوٹی بہنیں سلائی وغیرہ بھی کر لیتی تھیں، لیکن میں گھر سے نکلنے کا سوچ رہی تھی اور جب میں نے ابا سے کہا کہ میں اسکول میں پڑھانا چاہتی ہوں تو وہ کہنے لگے بیٹا آج تک تم گھر سے نہیں نکلی، ایسے میں باہر کی دنیا کو کیسے جھیلو گی؟ میں ابا کے سامنے اپنی سہیلی کا ذکر کرتے ہوئے کہنے لگی ابا مائرہ بھی تو اسکول میں پڑھاتی ہے، اس نے کہا ہے کہ ہمارے اسکول میں ایک ٹیچر کی جگہ خالی ہے، اب بس مجھے اجازت دے دیں۔ اب میں ابا کی منتیں کر رہی تھی۔ آخرکار انہوں نے مجھے اجازت دے دی اور پھر میری خوش نصیبی تھی کہ مجھے ایک اسکول میں نوکری مل بھی گئی۔ ٹیچر بننے کا خواب تو بچپن سے ہی تھا، یقین نہیں آ رہا تھا کہ اب میرا یہ خواب پورا بھی ہو جائے گا، ساتھ میں ابا کا سہارا بھی بن جاؤں گی۔ کچھ نہیں تو تھوڑی بہت تنخواہ مجھے یہاں سے مل ہی جانی تھی۔ یہ بات سچ تھی کہ ہم چاروں بہنوں کو اللہ نے بہت خوبصورتی سے نواز رکھا تھا اور بغیر پردے کے تو میں گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی تھی۔ پھر اسے اسکول کا ماحول بھی بہت اچھا لگا، لیکن زیادہ پریشانی یہ تھی کہ اس اسکول میں سب لڑکے ہی پڑھتے تھے۔ لیکن مائرہ کہنے لگی کہ اسکول کی سیلری زیادہ ہے باقی اسکول کے مقابلے میں۔ یوں اس کے کہنے پر میں یہاں پڑھانے لگی، مکمل حجاب میں پڑھاتی تھی، لیکن پھر بھی میں اس لڑکے سے پریشان ہو گئی جس کی بڑی بڑی آنکھیں مجھے دیکھتی رہتی تھی۔ وہ 16-17 سال کا لڑکا تھا اور میں 21-22 سال کی ایک نوجوان لڑکی۔ اسے میرا احترام کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ تو چھچوری حرکتیں کرنے پر اتر آیا تھا۔ پھر اس دن میں نے سوچا کہ میں زیادہ دن ایسے برداشت نہیں کروں گی۔ اگر اس نے آج بھی مجھے ایسے ہی دیکھا یا پڑھنے کے بجائے گھورنے کی کوشش کی تو میں ساری کلاس کے سامنے اسے ذلیل کروں گی۔ یہی ارادہ کر کے آج میں اسکول آئی تھی، تبھی سب سے پہلے میں نے اسے ہی کھڑا کر دیا۔ تمہاری توجہ پڑھائی پر ہے ہی نہیں، میں تمہاری پرنسپل سے شکایت کروں گی، میں غصے سے اسے کہہ رہی تھی، لیکن اس کے اوپر میرے غصے کا ذرا بھی اثر نہ ہوا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا ٹھیک ہے ٹیچر، جیسے آپ کی مرضی، لیکن وہ پرنسپل بھی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کی اس ڈٹائی پر میں حیران رہ گئی تھی۔ تبھی سارے لڑکے زور زور سے ہنسنے لگے اور میں نے انہیں جھڑک کر خاموش کروا دیا۔ آج تو غصے سے میرا برا حال ہو گیا تھا۔ ہر روز کی طرح وہ آج بھی مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی وجہ سے میں شدید پریشانی کا شکار تھی۔ پھر چھٹی کے بعد گھر چلی آئی۔ روزانہ کی طرح وہ مجھے اسٹاپ تک چھوڑنے آتا اور خود غائب ہو جاتا، لیکن اس دن میں نے ایک اسٹوڈنٹ کو اپنے آفس میں بلایا اور اس سے پوچھنے لگی وہ لڑکا جس کا نام شاہ نور ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ تو وہ حیرت سے کہنے لگا ٹیچر یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا، اس کا گھر ہم نے آج تک نہیں دیکھا، ویسے بھی یہ اسکول میں نیا آیا ہے۔ اب میں تشویش کا شکار تھی۔ پرنسپل سے بھی اس کی شکایت نہیں کر سکتی تھی کیونکہ
नई नई नौकरी थी, अगर वो मुझे निकाल देते तो फिर नौकरी ढूंढना मुश्किल हो जाता। यही सोचकर मैं खामोश रही। फिर उस दिन जब मैं बोर्ड पर कुछ लिखने में मसरूफ़ थी तो पीछे मुझे उसकी नज़रों की तपिश का एहसास हुआ। मैंने जैसे ही पलट कर देखा, वो पेन मुंह में डाले बजाय काम करने के मुसलसल मुझे देखे जा रहा था। तब मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसे खड़ा होने के लिए कह दिया और चिल्लाते हुए कहने लगी, क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों देख रहे हो मुझे? वो सर झुकाकर कहने लगा, टीचर आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं। मैं हैरान रह गई थी, जबकि सारे लड़कों ने फिर से हंसना शुरू कर दिया था। गुस्से के मारे मेरा चेहरा सुर्ख हो गया और मैं उसे कहने लगी, दफ़ा हो जाओ इस क्लास से, तुम्हारे मैं प्रिंसिपल से शिकायत करूंगी। इतने दिन से मैं बर्दाश्त कर रही थी, तुम मेरी मजबूरी से फ़ायदा उठाते जा रहे हो। चलो निकलो क्लास से और सज़ा के लिए बाहर खड़े हो जाओ। वो भी हाथ ऊपर करके। अब मैंने उसे क्लास से बाहर निकाल दिया था, लेकिन मैं खुद अपने अंदर अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी। फिर उस दिन मेरे सर में इस कदर शदीद दर्द हुआ कि मैं आधी छुट्टी लेकर घर आ गई थी। अम्मी और छोटी बहनें कहने लगी, क्या हुआ आपी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने उन्हें हाँ में सर हिला दिया था। फिर गोली खाकर गहरी नींद सो गई, लेकिन ख्वाब में अपने आप को एक सहरा में भटकते हुए देखने लगी, जैसे कुछ लोग मेरे पीछे आ रहे हों और मैं पागलों की तरह बिखरे बालों के साथ आगे ही आगे भाग रही हूँ। लेकिन अचानक ही सामने कुएं को देख ना सकी और उसमें गिर गई। अब मैं उस पानी में हाथ पांव मारते चिल्ला रही थी, मुझे बचाओ, लेकिन किसी ने भी मेरी आवाज़ नहीं सुनी। तभी किसी ने गहरे पानी से एकदम से मुझे निकाल लिया था। मैं होशो हवास से बेगाना हो रही थी, लेकिन आंखें खोलकर उस बचाने वाले को भी देखना चाहती थी। तभी पसीने में शराबूर वजूद के साथ मेरी आंखें खुल गईं। ये मैंने कैसा ख्वाब देखा है? अब्बा कहते थे, जब भी बुरा ख्वाब देखो तो फ़ौरन ही करवट बदलकर सो जाओ और दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दो। अब मैंने भी ऐसा ही किया। कुछ देर बाद तहज्जुद का वक्त हुआ तो मैंने अब्बा को वज़ू करते हुए देखा। अब मैंने भी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का इरादा किया और वज़ू करने चल पड़ी। ये नौकरी मेरे लिए इस कदर परेशानी का बायस बन जाएगी, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन अगले 2 दिन तक जब वो क्लास में नहीं आया तो मैं खुश हो गई। फिर यूं ही बच्चों को पढ़ाते हुए मैंने एक बच्चे से उसके बारे में दरियाफ्त किया तो वो बड़ा लड़का कहने लगा, टीचर दरअसल वो बहुत दूर से आता है, हमें तो उसके घर के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन वो पैदल ही आता जाता है और उसका घर यहाँ से बहुत फासले पर है। सुना है कि वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है। मैं दिल में सोचने लगी कि अगर गरीब है तो गरीब के बच्चे ऐसे नहीं होते, वो तो इंतहाई छिछोरा है, वो सब झूठ बोलता होगा अपने दोस्तों को। इस बारे में मैंने अपने आप को ये सोचकर मुतमईन कर लिया था, लेकिन उस दिन शदीद गर्मी ने मेरी हालत बुरी कर दी थी। पसीना पसीना वजूद लिए मैं घर में दाखिल हुई। अभी नौकरी नहीं थी, इसलिए मैं छुट्टी भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अम्मा कहने लगी, क्या ज़रूरत है ख़ुद को ख्वार करने की, वो भी चंद हज़ार के लिए, बस घर में सिलाई वगैरह कर लिया करो या ट्यूशन पढ़ा लिया करो बच्चों को। तो मैं अम्मा से कहने लगी कि स्कूल पढ़ाऊंगी तो बच्चे खुद ब खुद ट्यूशन के लिए आ जाएंगे, सबको मालूम होगा कि मैं एक स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर हूँ। अम्मा ये सुनकर खामोश हो गई थी, लेकिन अगले दिन मेरी तबीयत कुछ अजीब हो रही थी। दिल तो चाह रहा था कि छुट्टी कर लूँ, लेकिन फिर भी स्कूल चली आई। जैसे कि छुट्टी हुई तो बस स्टॉप पर आकर बस का इंतज़ार करने लगी, लेकिन मैं परेशान सी हो गई जब मैंने ऊपर खड़े हुए चंद ओबाश नौजवानों को देखा। वो मुझे देख रहे थे, सर से लेकर पाँव तक, और अजीब अंदाज में हंस रहे थे। उनके छिछोरे अंदाज पर मैं कांप कर रह गई। मैं दिल ही दिल में दुआएं करने लगी कि जल्दी से बस आ जाए और मैं उसमें सवार हो जाऊं, लेकिन आज बस बहुत देर से आई थी। मेरा सड़क पर खड़े होना मुहाल हो गया था। ये गलीज नजरें और गंदे गंदे फिक्रे मेरे वजूद को छलनी कर रहे थे कि खुदा खुदा करके बस आई तो मैं उसमें सवार हो गई। 2-3 दिन से गर्मी भी शिद्दत की पड़ रही थी। बड़ी निडाल होकर मैं घर पहुंची थी। एक तरफ तो बस देर से आई थी तो दूसरी तरफ उन लड़कों ने मेरा जीना हराम कर लिया था। लेकिन मैंने ये बात अम्मा को नहीं बताई, वरना वो मेरी स्कूल की नौकरी छुड़ा देती, और मैं तो अब्बा का सहारा बनने के लिए नौकरी कर रही थी। फिर 3-4 दिन से वो स्टूडेंट आया ही नहीं था जो मुझे क्लास में परेशान करता रहता था, और मैं शुक्र अदा कर रही थी। लेकिन उस दिन सुबह से मुझे चक्कर आ रहे थे। मैंने प्रिंसिपल से जल्दी छुट्टी का कहा तो वो कहने लगी, आज 3 टीचर्स पहले ही छुट्टी पर हैं, इससे छुट्टी नहीं मिल सकती। लेकिन मेरी तबीयत तो इतनी ख़राब हो रही थी, गर्मी ने और पूरी हालत कर रखी थी। फिर पूरे 1 बजे छुट्टी हुई तो तपती दोपहर में मैं स्कूल से निकली और बस स्टॉप की तरफ जाने लगी। गर्मी की वजह से चरिंद परिंद और इंसान तक सड़कों पर नज़र नहीं आ रहे थे। इक्का दुक्का गाड़ियां ही नजर आ रही थी, लेकिन मैं क्या जानती थी कि मुझ पर कयामत टूटने वाली है। जब एक सुनसान गली से गुजरते हुए अचानक ही मुझे इस कदर जोर से चक्कर आया कि मैं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई थी। मुझे कुछ होश ना रहा, लेकिन जब ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे ऊपर झुका हुआ है, किसी गंदी सांसों की बदबू मैं अपने ऊपर महसूस कर रही थी।
तभी मैंने आंखें खोली थी। शदीद हब्स और तबीयत खराबी की वजह से मैं उठ भी ना पा रही थी, लेकिन आंखें खोलने की बाद जो मंजर मेरे सामने आया था मुझे चीखने पर मजबूर कर गया था। मेरे सामने खड़े हुए 4 ओबाश नौजवान और मैं खुद जंगल में पड़ी थी। शाम के साए चारों तरफ फैले हुए थे। इसका मतलब है कि मैं बजाय घर जाने के इस जंगल में आ गई हूँ। मैं दहशतज़दा नज़रों से उन छिछोरे नौजवानों को देख रही थी। कल ही तो ये स्टॉप पर खड़े मुझे तंग कर रहे थे और आज मुझे यहाँ जंगल में उठाकर ले आए, मेरी बेहोशी का फ़ायदा उठाकर। अब मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिए। गुनाह के लिए मेरे साथ ऐसा ना करो। एक पर्देदार लड़की हूँ, मुझे बेहिजाब ना करो। लेकिन वो चारों नशे में लग रहे थे। मैं जानती थी कि आज वो मेरी इज्जत बर्बाद करके ही रहेंगे। तभी मैंने अपने पास पड़ा हुआ मोटा सा पत्थर उठाया और उनकी तरफ उछाल दिया। वो तीनों कहकहे लगाकर हंसे थे। शायद मेरी बेबसी पर अब मैं पागलों की तरह भागने लगी, लेकिन वो चारों तेजी से मेरे पीछे आ रहे थे। अचानक ही भागते भागते मैं किसी से तेजी से टकराई थी। अपने सामने लंबे चौड़े खड़े उस नौजवान को देखकर मैं हैरान रह गई थी। ये तो वही था, मेरा तालिब इल्म, मेरी क्लास में पढ़ने वाला स्टूडेंट, जो मुझे तंग करता रहता था। लेकिन आज ये इस जंगल में कैसे? लेकिन उसने मुझे अपने घेरे में ले लिया था। फिर तसल्ली देते हुए कहने लगा, यहाँ आप महफूज हैं उस्तानी जी। उसने मुझे एक दरख्त के पीछे छुपा दिया था और खुद न जाने कहाँ गायब हो गया। मैं वहाँ पर छुपी कांप रही थी। ऐसे लगता है कि अभी वो मेरी इज्जत बर्बाद करने आ जाएंगे, क्योंकि वो 4 थे और ये अकेला जाहिर है कि ये उनका मुकाबला कैसे कर सकता था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मुझे किसी की दर्दनाक चीखने की आवाज़ आई। मैं तो उठकर देख भी न सकी, क्योंकि मैं एक इंतहाई डरपोक किस्म की लड़की थी। कभी भी ना सोचा था कि घर से बाहर निकलूंगी तो ऐसे हालात का सामना करना पड़ेगा। किसी के भागते कदमों की आवाज़ आई, जैसे कोई चीखता हुआ लंगड़ाता यहाँ से भाग रहा हो। तभी मैंने दरख्त की ओर से देखा। वो चारों के चारों खून में डूबा चेहरा लिए यहाँ से बहुत दूर जा रहे थे। मैं खुद नहीं जानती थी कि उनके साथ क्या हुआ है, लेकिन तभी किसी ने मुझे धीरे से पुकारा। मैं जूं ही पलटी, अपने सामने खड़े उस नौजवान को देखकर हैरान रह गई। वो मेरा हिजाब हाथ में लिए खड़ा था। फिर कहने लगा, उस्तानी जी, आप बगैर पर्दे के अच्छी नहीं लग रही। ये पर्दा ही आपकी जीनत है। उसने वो दुपट्टा मेरे सर पर डाल दिया था। मैं आज शुक्रगुजार नज़रों से उसे देख रही थी, जिसे मैं हमेशा ही जलील करती रहती थी, वो भी पूरी क्लास में। आज उसने मेरी इज्जत बचा ली थी। फिर मैं हैरत से उससे कहने लगी, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ पर हूँ? तो वो अजीब लहजे में कहने लगा, मैं हर जगह जान लेता हूँ जहाँ आप जाती हैं। यूँ समझे कि मैं आपके पीछे पीछे ही होता हूँ, लेकिन आपको इसकी खबर नहीं होती। उसकी उलझी हुई बातों की समझ मुझे नहीं आई थी। मैं उसे मज़ीद सवालात भी पूछना चाहती थी, लेकिन वक्त का एहसास हुआ, क्योंकि रात के साए फैलने को थे। मैं जानती थी कि अम्मा अब्बा के दिल पर क्या गुजर रही होगी जब मैं पूरे वक्त पर घर ना पहुँची होंगी। तो अब वो मुझे घर तक छोड़कर चला गया था। मेरी हालत देखकर अम्मा सर पीट कर रह गई थी। बहनें भी इर्द गिर्द जमा हो गई। मैं शर्मिंदगी से नज़रें चुरा रही थी। उन्हें क्या कहती? फिर मैंने अम्मा के सामने हाथ जोड़ दिया और कहने लगी, अम्मा, खुदा के लिए अब्बा को कुछ ना बताना, वरना मेरी रही सही इज्जत भी उनकी नज़रों में गिर जाएगी। अम्मा कहने लगी, तेरी इज्जत तो महफूज है ना? वो तो नहीं हुआ। वो लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए होता है। अम्मा जो मुझसे पूछना चाह रही थी वो मैं अच्छी तरह समझ गई थी। तभी मेरी आंखों के सामने किसी का चेहरा आया था। आज उसकी वजह से मेरी इज्जत बच गई थी। मैं अम्मा से कहने लगी कि अम्मा, आपकी बेटी बिल्कुल महफूज है, आप फिक्र ना करें। अब मैं पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गई थी। दूसरे दिन स्कूल पढ़ाने गई तो क्लास में मौजूद था, लेकिन अब वो मुझे छोड़ने भी आता था और रास्ते में भी कभी कभार मिल जाता था। ना जाने क्यों मुझे उसके आने से तहफ़्फ़ुज़ महसूस होता था। पहले जो मैं उसकी आंखें अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब मैं हैरान होती कि कोई उस्तानी भला अपने शागिर्द से कैसे मोहब्बत कर सकती है। लेकिन धीरे धीरे मुझे उसका एहसास होने लगा था और यह एहसास बहुत खूबसूरत था। लेकिन एक दिन स्कूल से जल्दी छुट्टी हो गई, जब वो कहने लगा कि आज आप मेरे साथ चले, मैं आपको अपना घर दिखाना चाहता हूँ। मैंने अपनी माँ को भी आपके बारे में बताया है, वो आपसे मिलना चाहती हैं। उस्तानी जी, आज फिर उसकी काली स्याह आंखें मुझे देख रही थीं। फिर न जाने क्यों मेरे दिल में भी ख्वाहिश जागी कि मैं उसकी माँ से मुलाकात करूं। तभी उसके कहने पर मैं उसके घर चली आई, लेकिन वो तो मुझे उसी वीराने में मिलने आया था। अब मैं हैरान होकर कहने लगी, तुम्हारा घर यहाँ पर है? क्या तुम इतनी दूर से मेरे पास पढ़ने आते हो? तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, पढ़ने का तो एक बहाना है, असल में मैं आपसे मुलाकात का दिल चाहता है तो पढ़ने के लिए आ जाता हूँ।
کیا مطلب؟ میں اب بری طرح چونک گئی تھی۔ تو وہ کہنے لگا، وہ جو سامنے گھر نظر آ رہا ہے وہیں پر میں رہتا ہوں۔ اب میں اس گھر کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ تو عجیب ویران اور بالکل اجڑا ہوا لگ رہا تھا۔ کوئی انسان تو دور کی بات ہے، کوئی بھوت بھی اس گھر میں نہ رہے۔ لیکن اس کے کہنے پر میں اس گھر میں چلی آئی۔ اندر آ کر تو میرے اوسان ختم ہو گئے تھے۔ یہ تو سچ مچ ایک اجاڑ اور سنسان گھر تھا۔ میں خوفزدہ لہجے میں کہنے لگی، تمہاری ماں تو اس گھر میں ہے ہی نہیں، تم نے مجھ سے جھوٹ کہا۔ تو وہ عجیب سے لہجے میں کہنے لگا، ہاں یہ جھوٹ ہے کہ میری ماں اس گھر میں نہیں رہتی، لیکن میں یہیں پر رہتا ہوں اور یہی میرا ٹھکانہ ہے، صرف اسی وجہ سے کیونکہ میں نے اپنا وہ ٹھکانہ چھوڑ دیا ہے۔ اسکول والا وہ عجیب باتیں کر رہا تھا جبکہ مجھے خوف محسوس ہوا۔ میرے چہرے پر خوف دیکھ کر وہ کہنے لگا، دراصل میں اس اسکول میں پڑھنے نہیں بلکہ صرف آپ کی خاطر آتا ہوں۔ وہ اچانک ایک کمرے میں جا کر غائب ہو گیا جبکہ میں پاگلوں کی طرح اسے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد کوئی اس کمرے سے باہر آیا تھا، لیکن وہ جو کوئی بھی تھا اسے دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں۔ انتہائی خوفناک، لمبا چوڑا، اس کی سیاہ آنکھیں اور سفید چہرہ مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں دہشت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ وہ بالکل ہی اجنبی تھا۔ تبھی وہ میرے قریب آ کر کہنے لگا، وہی تمہارا شاگرد جو تمہارے پاس پڑھنے آتا ہے، آج سے تم مجھے یہاں پڑھانے آؤ گی۔ اس کی آواز بالکل تبدیل ہو گئی تھی۔ میں پلٹ کر بھاگنے کو تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے زمین نے میرے قدم کو جکڑ لیا ہو۔ میں اتنی خوفزدہ ہو گئی کہ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور روتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں سمجھ گئی کہ یہ وہ نہیں ہے جسے میں سمجھ رہی ہوں۔ یہ کوئی غیر فطری مخلوق لگ رہی تھی جو آج میرے سامنے کھڑی تھی۔ پہلی بار اسے یوں بولتے دیکھ کر میرے ہوشان ختم ہو گئے تھے۔ تبھی وہ میرے قریب آ کر کہنے لگا، میں وہی شاگرد ہوں، میرا یقین کرو، مجھے پہچاننے کی کوشش کرو۔ آج میں اصلی روپ میں تمہارے سامنے آیا ہوں۔ تم نے مجھے دیوانہ کر دیا تھا۔ اس دن پہلی بار جب تم اسکول میں پڑھانے آئی تھی، میں اس درخت کے اوپر بیٹھا تمہیں دیکھ رہا تھا۔ میں ایک جنزاد ہوں، تمہارا عاشق۔ میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرا جسم بالکل سن ہو گیا تھا۔ وہ مجھے یہاں کیوں لے کر آیا تھا؟ مجھے جانے دو، مجھے گھر جانا ہے، میں اسے بار بار کہہ رہی تھی۔ تبھی وہ کہنے لگا، میں سچ میں ہی ایک جنات ہوں، لیکن ایک نیک جنزاد جو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ تم جیسے ہی پاکیزہ صورت والی لڑکی میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں تمہارے سامنے آنے پر مجبور ہوا۔ میں اپنے آپ پر اختیار نہ رکھ سکا تھا۔ جب مجھے کسی طرح تمہارے سامنے آنے کا موقع نہیں ملا تو ایک شاگرد کے روپ میں وہاں پڑھائی کرنے چلا آیا۔ جس اسکول میں آباد ہوں وہاں میں اس لیے 20 سالوں سے رہتا رہا تھا، لیکن پہلی بار اتنی خوبصورت لڑکی دیکھی تو اس پر عاشق ہو گیا۔ تبھی تو تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں، تمہیں اپنے دل کی بات بتانے کے لیے۔ میں بالکل خاموش تھی، مجھے سمجھ نہ آئی کہ میں یہاں سے کیسے بھاگوں۔ اچانک ہی میں نے اس جنات کو دھکا دینا چاہا، لیکن میرے ہاتھ تو اس کے وجود کو چھو بھی نہ سکے تھے۔ میری اس حرکت پر وہ زور زور سے ہنسا، پھر کہنے لگا، تم چاہو بھی تو مجھے چھو نہیں سکتی، کیونکہ تم مٹی سے بنی ہو اور میں آگ سے۔ گو کہ آگ اور مٹی کا کوئی جوڑ نہیں، لیکن عشق پر کس کا زور چلتا ہے۔ اس لیے میں تم سے عشق کرتا ہوں اور تمہارا ایسے ہی پیچھا کرتا رہوں گا، تمہارا محافظ بن کر۔ میرے وجود سے کبھی تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، الٹا فائدہ ہی ہوگا۔ میرے وجود سے کبھی تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، الٹا فائدہ ہی ہوگا، کیونکہ کوئی بھی تمہیں تنگ کرے گا یا پریشان کرے گا تو میں تمہیں بچانے آؤں گا، تمہاری پریشانی دور کرنے۔ کیا تمہیں میرا ساتھ منظور ہے؟ اس کی سفید آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میں جلدی سے کہنے لگی، تم ایک نیک جنات ہو، اس لیے مجھے جانے دو، مجھے گھر چھوڑا ہو، لیکن کیا تمہیں میرا ساتھ قبول ہے؟ وہ اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا۔ میں نے اسے ہاں کہہ دی تھی کہ وہ جب چاہے میرے سامنے آ سکتا ہے، کیونکہ مجھے ابھی گھر جانا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس خوفناک جنگل میں آ کر مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں بڑی گھبرائی ہوئی گھر پہنچی تھی، حواس باختہ سی۔ اماں کہنے لگی، تیری طبیعت ٹھیک نہیں ہے بیٹی، کیا ہوا ہے؟ ابا بھی مسجد سے آ گئے تھے، لیکن ابا نے میری سرخ آنکھیں دیکھی تو پریشان سے ہو گئے۔ وہ مجھ پر دم کرنے لگے۔ پھر میں نے ان کی سوچتی ہوئی آنکھیں دیکھی تو میں پریشان ہو گئی۔ دل میں خیال آیا کہ ابا تو ایک مولوی ہیں، کہیں وہ یہ نہ جان لے کہ مجھ پر ایک جنات عاشق ہو گیا ہے۔ اگلے 2 دن تک میں بخار میں مبتلا رہی۔ اماں کہنے لگی، تو بخار میں نہ جانے کیا عجیب و غریب باتیں کر رہی تھی، اب میں تجھے اسکول جانے نہیں دوں گی۔ میں گہری سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ خیال آیا کہ اب اسکول جاؤں گی تو وہ یقیناً میرے پیچھے پیچھے آئے گا، لیکن پھر یاد آیا کہ اس دن کیسے اس نے مجھے ان گنڈوں سے بچایا تھا، میری مدد کی تھی۔ اماں کہنے لگی، کیا سوچ رہی ہے؟ یہ دیکھ کر میں نے تیرے لیے کھچڑی بنائی ہے، یہ کھا لے کھچڑی۔ کھا کر میں گہری نیند سو گئی تھی، لیکن پھر آدھی رات کو میری آنکھ کھلی۔ نہ جانے میں کب سے سو رہی تھی، سارے گھر والے نیند میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن مجھے اپنے پاس ایک عجیب و غریب بھاری آواز سنائی دی تھی، آنکھیں کھول لو، یہ دیکھو میں تمہارے سامنے ہوں، ہم سے ملنے
आया हूँ। मैंने जो ही आंखें खोली तो वो मेरे सामने ही बैठा था। मैं उसे देखकर चीखना चाहती थी, लेकिन दहशत से मेरी आवाज़ हलक में ही दब गई। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता उस्तानी जी। मैं तो तुम्हारा मुहाफिज हूँ, तुम्हारी मदद करने वाला। इसलिए मुझसे घबराना मत, और ना ही कभी किसी को मेरे बारे में बताना। मैं जानता हूँ कि आज नहीं तो कल तुम्हारे बाप को मेरे बारे में पता चल जाएगा। वो मुझे तुम्हारे आसपास भटकने भी नहीं देगा, लेकिन तब तक मुझे अपनी आंखें सैराब करने दो। ये कहकर वो मेरे सामने से गायब हो गया था। अचानक ही मेरे दिल को ढारस सी हुई। मैं अपने आप को मजबूत तस्वर कर रही थी, ये सोच करके कि ताकतवर जिन्नात की ताकत मेरे साथ है। दुनिया की कोई कुव्वत मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। छोटी बहनें और अम्मा हैरान रह गई थी। कहने लगी, बाजी कल तो आप बुखार में तड़प रही थी और आज पढ़ाने जा रही हैं। तो मैं उन्हें कहने लगी कि बहुत नुकसान हो गया, अब मुझे स्कूल पढ़ाने जाना ही होगा। बाहिजाब होकर मैं स्कूल चली आई थी। सब मेरी खैरियत पूछ रहे थे, लेकिन आज मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। मैं जानती थी कि रोज़ाना सड़क पर खड़े मुझे बहुत डर लगता है जब मैं किसी अजनबी को आसपास महसूस करती हूँ, लेकिन जब मुझे ये बात मालूम हो गई कि वो जिनजात मेरा मुहाफिज है, तो मुझे इस बात ने खुशी दी थी। अब मैं बड़ी आज़ादी से स्कूल आने जाने लगी थी। पहले से ज़्यादा मेरे अंदर इत्मीनान आ गया था। फिर मेरी जहानत इस कदर थी कि प्रिंसिपल एक दिन सारे स्टाफ के सामने मेरी तारीफ़ करते हुए कहने लगा कि इसने अभी अभी स्कूल ज्वाइन किया है, लेकिन खुद अपनी जगह बनाई है अपनी काबिलियत से। वाकई सारे पेरेंट्स भी आकर तारीफ़ करते हैं कि इनकी क्लास के बच्चे बहुत अच्छे हो गए हैं पढ़ाई में। मैं अपनी तारीफ़ पर हैरान रह गई थी। अब मैंने स्कूल में ख़ास मकाम हासिल कर लिया था। फिर प्रिंसिपल ने मेरी तनख्वाह में भी इजाफा कर दिया, लेकिन हर रात मुझे किसी की आवाज़ सुनाई देती थी। उस दिन छुट्टी का दिन था, मगरिब का वक्त होने वाला था जब मैं अपनी बहनों के साथ छत पर बैठी थी। फिर अम्मा ने मुझे आवाज़ दी तो तीनों बहनें नीचे चली गईं, जबकि मैं अकेली ही छत पर बैठी आसमान को देख रही थी। मगरिब का वक्त हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने नमाज नहीं पढ़ी। ना जाने क्यों मेरा दिल बोझल हो रहा था। फिर नमाज पढ़ने का ख्याल दिल में आया तो मैं पलटने लगी, लेकिन छत के कोने में खड़े उस वजूद को देखकर मैं साकित रह गई। उसकी चमकती आंखें मुझे दूर से ही दिखाई दे रही थी। वो मुझसे मुलाकात करने आया था। धीरे धीरे चलता मेरे सामने आया, फिर कान में सरगोशी करते हुए कहने लगा, मेरे होते हुए तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा उस्तानी जी। मुझसे मुलाकात करने ज़रूर आना। मैं इस घर में नहीं आ सकता क्योंकि मुझे डर है कि यहाँ रहने वाले मुझे पहचान लेंगे। ये कहकर वो मेरे सामने से गायब हो गया, जबकि मैं बमुश्किल कदम उठाती नीचे आई थी। फिर रात को मैं बच्चों के टेस्ट चेक कर रही थी जब मुझे उन कागज़ के बीच में एक ऐसा कागज़ मिला जिस पर लाल रंग की रोशनाई से अजीबोगरीब हरूफ में कुछ लिखा हुआ था। मुझे बिल्कुल भी समझ ना आई थी कि ये क्या लिखा है। मैं उस तहरीर को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, तभी मेरे कान में सरगोशी हुई, उसी वीरान और पुराने घर में मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। कल रात मुझसे मुलाकात करने ज़रूर आना। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही मैंने पलट कर देखा तो मेरे पीछे कोई भी नहीं था, लेकिन उस कागज़ से अजीब सी बू आ रही थी। मुझे बहुत खौफ महसूस हुआ था। मैंने एकदम से ही वो कागज़ फाड़ कर फेंक दिया और फिर उनके टुकड़े उठाकर भी डस्टबिन में फेंक दिए थे। फिर दूसरे दिन मैं स्कूल चली आई, लेकिन यहाँ आकर भी शदीद दहशतज़दा हो गई जब हर जगह मुझे वो दिखाई देने लगा। मैं ब्रेक टाइम में बच्चों के पेपर ही चेक कर रही थी जब मुझे वो दरख्त के नीचे खड़ा हुआ दिखाई दिया। ऐसे लग रहा था जैसे वो मुझे अपनी तरफ बुला रहा है इशारे से, लेकिन कोई भी बच्चा उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। जाहिर है कि मेरे अलावा वो किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब पसीना पसीना वजूद लिए मुझसे वहाँ बैठा भी ना गया और मैं स्टाफ रूम में चली आई, हालांकि वहाँ गर्मी हो रही थी। फिर छुट्टी के बाद मैं स्टाफ पर खड़ी थी जब कोई बराबर में आकर खड़ा हुआ। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ये वही था। अब वो मेरे साथ साथ हर जगह जा रहा था। दिल में ख्याल आया कि ये घर भी जा सकता है। तभी मैं एकदम से पलटी तो वो अचानक मेरे सामने से गायब हो गया। अब तो मुझे रोना आ रहा था। इसका मतलब है कि उससे मिलना ज़रूरी हो गया और उससे मिलने के लिए मुझे वहीं जाना होगा। लेकिन क्या आज की रात मैं वहाँ जा सकती हूँ? घर से निकलना, वो भी रात को, ये नामुमकिन था। मेरे अब्बा एक मस्जिद के इमाम थे, उनकी पूरे मोहल्ले में इज्जत थी। ऐसे में मैं भला उससे मिलने की ऐप से कैसे जा सकती थी? लेकिन अगर मैं उससे मिलने ना गई तो ऐसे ही मुझे परेशान करता रहेगा। यही सोचकर अब मैं आधी रात को घर से निकलकर उससे मिलने जा रही थी। गो कि मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई थी। मैं जानती थी कि वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। फिर जैसे ही मैंने कॉलोनी का रास्ता पार किया, अचानक ही सड़क के पीछे वो जंगल दिखाई देने लगा और मुझे उस जंगल में नहीं जाना था जहाँ पर उसका वो वीरान घर मौजूद था जिसमें वो रिहाइश पजीर था। जैसे ही मैंने उस जंगल में कदम रखा, अचानक मुझे झाड़ियों के पीछे सरसराहट सी महसूस हुई, तो गोया वो यहीं कहीं पर छुपा हुआ है। अचानक वो मेरे सामने आया था।
उस खौफनाक वजूद को देखकर मैं बुरी तरह डर गई। मुझे यकीन था कि तुम ज़रूर आओगी, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। अब मैं गुस्से से उसे कहने लगी, ये परेशानी नहीं बल्कि मेरा पागलपन है। मैंने पहली दफ़ा किसी लड़की को अपने पास बुलाया है, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि मैं उस पर पहली नज़र में ही आशिक हो गया था। अब मैं उसकी मिन्नतें करना चाहती थी कि वो मेरा पीछा छोड़ दे। ये सब मेरे लिए नामुमकिन है, लेकिन एक तरफ से वो मेरा मुहाफिज भी था। इसलिए मुझे खामोश देखकर वो कहने लगा, आओ मैं तुम्हें इस जंगल की सैर कराता हूँ। अब वो मुझे नहर किनारे ले आया था। उस नहर का पानी बहुत साफ, शफाफ और चमकता हुआ था। चांद की पूरी रोशनी उस पानी पर गिर रही थी। यह मंजर रात की तारीकी में ताबनाक लग रहा था। मैं उस मंजर में होने लगी, वो मेरे बराबर में ही बैठा था कि अचानक मेरा पाँव फिसला और मैं उस नहर के पानी में जा गिरी। मैं बुरी तरह पानी में हाथ पाँव मार रही थी। उसने पलक झपकते में ही मेरा हाथ खींचकर मुझे बाहर निकाल लिया था। पानी की वजह से मुझे सांस भी नहीं आ रहा था। तभी किसी ने मेरे मुंह पर जोर जोर से हाथ मारा। मैंने एकदम से आंखें खोली। वो अम्मा थी जो परेशान थी, मेरे सर पर खड़ी थी। ये क्या हुआ तुझे? अजीब अजीब सी बातें करने लगी है। नहीं, मैं तो तेरी वजह से परेशान हूँ अम्मा। सर पकड़े बैठी थी तो गोया मैंने यह अजीबोगरीब सा ख्वाब देखा था। मैं उस जिनजादे से मिलने जंगल में नहीं गई थी। अभी मैं खाली खाली नज़रों से सोचती अम्मा को देख के जा रही थी। फिर छोटी बहन कहने लगी, अम्मा मुझे तो इसकी आंखों से खौफ महसूस होता है। देखो तो सही, बाजी बहुत बदली बदली सी लग रही हैं। मैं बिस्तर छोड़कर उठ खड़ी हुई। अम्मा मुझे स्कूल जाना है। अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगी, आज तेरे रिश्ते वाले आएंगे। हमने तेरी शादी करने का फैसला किया है। मैंने एकदम से ही झटके से अम्मा का हाथ छुड़ाया और कहने लगी, हरगिज़ नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे अभी अब्बा के लिए बहुत कुछ करना है। आप ज़ारा की शादी कर दें। मैंने अपने से छोटी बहन का नाम लिया था। अम्मा कहने लगी, नहीं, तू बड़ी है और शादी तेरी ही पहले होगी, इसलिए आज से तेरा स्कूल जाना बंद। मैं आंसू भरी नज़रों से अम्मा को देखते हुए कहने लगी, अम्मा घर के हालात ऐसे हैं और आप मेरी शादी करना चाहती हैं। आपने ये क्यों नहीं सोचा कि अब्बा हमारी शादी कैसे करेंगे? हम चार चार बेटियां बोझ की तरह उनके सर पर सवार हैं। किसी ना किसी को तो घर के हालात बेहतर करने के लिए घर से निकलना होगा। अब अम्मा भी खामोश हो गई थी और मैं तैयार होकर स्कूल चली आई। स्कूल में मेरी एक पहचान बनती जा रही थी। प्रिंसिपल भी मुझसे खुश था, क्योंकि मैं बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाती थी। अगर उस जन्नात की वजह से मैं डिस्टर्ब ना होती तो शायद और भी ज़्यादा फोकस बच्चों को पढ़ाने पर रखती, लेकिन कभी कभी वो मुझे स्कूल के हर हिस्से में दिखाई देता और आज भी बच्चे के पेपर चल रहे थे। कुछ बच्चे निस्बतन उस जगह पर बैठे थे जहाँ पर झाड़ियाँ और दरख्त मौजूद थे। तभी एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ बच्चा बार बार इधर उधर देखने लगा। मुझे वो कुछ बेचैन सा नजर आ रहा था। मैं उसे कहने लगी, क्या परेशानी है तुम्हें? जल्दी जल्दी पेपर हल करो। वो खड़ा हुआ और कहने लगा, टीचर बार बार कोई ऊपर से ये सूखे पत्ते फेंक रहा है। मुझे यहाँ बैठते डर लग रहा है। अब मैं हैरान रह गई थी। मैंने दरख्त के ऊपर देखा, एक काला साया दिखाई दिया था। खौफ से मेरा वजूद थर थर कांपने लगा। मैं इतनी बड़ी होकर डर गई थी। फिर ये तो एक मासूम बच्चा था। फिर मैंने उसे दूसरी जगह पर बिठा दिया, लेकिन अब मेरा ध्यान बार बार उस दरख्त की तरफ जा रहा था, क्योंकि दरख्त की शाखों में छुपे दो खौफनाक हाथ मुझे साफ दिखाई दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से छुट्टी के बाद मैं घर गई थी, लेकिन घर जाते ही मुझे शदीद बुखार हो गया। अब्बा ने मुझे दम करना शुरू किया और फिर उन्हें महसूस हो गया। सच सच बता बेटा, तेरा वास्ता किसी गैर फितरी मखलूक से बड़ा है। मैं लाल आंखों से अब्बा को देख रही थी। अब्बा वो बहुत अच्छा है, बहुत नेक, वो मेरी मदद करता है। मेरे मुंह से ये बात सुनकर अब्बा अम्मा के होश उड़ गए थे, जबकि छोटी बहनें खौफजदा नजर आ रही थी। फिर अम्मा सर पकड़कर कहने लगी, मैं तो पहले ही कहती थी कि इसके हाथ ज़रूर कोई ऐसा वैसा मामला है, तभी तो आजकल उल्टी सीधी हरकतें करने लगी है। देखो, वो स्कूल जिसमें ये पढ़ाने जाती है वो शुरू से ही मशहूर है कि वहाँ पर आसेब है। अक्सर बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है। मेरी जवान जहान बच्ची को खुदा न ख्वास्ता कुछ हो गया तो मैं कहाँ इसे लेकर मारी मारी फिरूंगी। अब्बा कहने लगे, ऐसी बात नहीं है, वो जो कोई भी है वो शैतान जन्नात नहीं है, बस वो इसके जहन पर असरअंदाज हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी बेटी भी उसे पसंद करने लगी है। भले ही इसे ये बात मालूम है कि वो जिन्नात है, लेकिन फिर भी वो इसे अपने सामने देखना चाहती है। क्या ये सच है? अब अब्बा मुझसे सवाल कर रहे थे। मैंने नज़रें झुका ली। ये भी हकीकत ही थी। मैंने कभी भी उस जिनज़ादे से खौफ महसूस नहीं किया था। अगरचे वो मुझे कभी कभार अचानक दिखाई देता तो मैं डर जाती थी, लेकिन उसका साथ पाने पर मैं तहफ़्फ़ुज़ महसूस करती थी। वो मेरा शागिर्द भी रहा था और मुझे अपनी उस्तानी भी समझता था। फिर मैंने शुरू से लेकर आखिर तक अब्बा को सारी बात बता दी। फिर अब्बा कहने लगे, अब वो तुम्हारे सामने आए तो तुम उससे पूछना कि वो क्या चाहता है। देखो बेटी, ऐसा सारी ज़िंदगी के लिए मुमकिन नहीं।
अगर वो तुम्हें ऐसे ही परेशान करता रहा तो ज़िंदगी में आगे चल कर तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तो तुम उसे बर्दाश्त कर लोगी, लेकिन तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी ये बातें बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तुम आधी आधी रात को उठकर घर से बाहर निकल कर जाओगी, वो भी ख्वाब के ज़ेरे असर। क्या मैं सच कह रहा हूँ? अब्बा की बात पर मैं शर्मिंदगी महसूस करने लगी। मैं जो समझती थी कि मेरे घर से जाने पर सब अनजान है और जो मुझे ये ख्वाब दिखाई देते हैं वो ख्वाब की कैफियत तारी होने के बाद में सच में ही घर से निकल जाती थी। आज मुझे पता चला कि ये बात अम्मा अब्बा जानते थे। अब्बा कहने लगे, मैं तुम्हें बहुत बड़े आमिल के पास लेकर जाऊंगा जो इस शहर में रहता है और उसे मेरी बहुत जान पहचान है। वो तुम्हारा इलाज तो कर देगा, लेकिन याद रखना बेटी, उसने एक जिन्नात को अपने पास कैद कर लेगा। मैं नहीं चाहता किसी मखलूक को तकलीफ पहुंचाऊं, इसलिए आखिरी दफ़ा उसे मौका दे रहा हूं। अब वो तुम्हारे सामने आए तो तुम उससे पूछना कि आखिर वो क्या चाहता है, ताकि उसकी ख्वाहिश पूरी होने के बाद वो तुम्हें छोड़कर चला जाए। मैं घबराकर अब्बा से कहने लगी, नहीं नहीं अब्बा, मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। उसने कई बार मेरी मदद की है। आप नहीं जानते कि बाहर के हालात लड़कियों के लिए किस कदर ख़तरनाक है। कई बार मुझे लोगों ने हरासा किया, लेकिन जब मैं ये सोचती हूँ कि वो मेरे साथ है तो मुझे किसी से डर नहीं लगता। अब्बा चुपचाप मेरी बातें सुन रहे थे, फिर वो उठकर चले गए। लेकिन उस रात वो मेरे सामने आया था। उसके दिलकश आवाज़ मेरे कानों में रस घोल रही थी। मैं जानती थी कि वो आ गया है, लेकिन मुझे अब्बा का भी खौफ था। उन्हें मालूम हो जाएगा कि मैं उस दिन ज़ात से मुलाकात करने जा रही हूँ। तभी मैं चुपके से ऊपर छत पर चली गई। किसी को मालूम भी ना हुआ, लेकिन वो मेरे सामने खड़ा था। फिर मैं उसे कहने लगी, तुम यहाँ से चले जाओ हमेशा के लिए, वरना सबको मालूम हो गया है कि तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हो। और अब्बा तुम्हारे साथ क्या करेंगे ये मैं नहीं जानती। मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि कोई इंसान तुम्हें अपने पास कैद कर ले। उसने चमकती सफ़ेद आंखों से मुझे देखा, फिर कान में सरगोशी करते हुए कहने लगा, मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती। जिस दिन तुम्हारी शादी होगी उस दिन हमेशा के लिए मैं अपनी दुनिया में वापस लौट जाऊँगा। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। मुझे खुशी भी हुई कि वो मुझे परेशान नहीं देख सकता था। फिर उस दिन के बाद से मैंने खुद भी अपने जहन से ये निकाल दिया कि मुझे कोई नुकसान पहुँचा सकता है। अब मैं उससे अपने दोस्तों की तरह बात करती थी। कभी कभार वो मेरे सामने आ जाता तो मैं उसे बताती कि किस तरह घर के हालात ख़राब होने की वजह से मुझे बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि मैं गरीब बाप की बेटी हूँ जिसके सर पर चार चार बेटियों का बोझ है। उसने मुझसे वादा किया कि वो मेरी मदद करेगा, क्योंकि मुझे किसी शहजादी की तरह खुश देखना चाहता है। उसकी इस बात में हकीकतन मुझे खुशी दी थी। उधर अम्मा अब्बा मेरा रिश्ता तलाश कर रहे थे। फिर मुझे रिश्ता देखने वाले लोग आए। उन्होंने मुझे पसंद करके अंगूठी पहना दी। वो लोग अच्छे ख़ानदान से, लेकिन हम बहुत गरीब थे। लेकिन जाते जाते मेरी सास अब्बा को कह कर गई थी कि हमारे ख़ानदान में सारी बहुएं जहेज़ लेकर आती हैं और बाकायदा एक मुकाबलेबाजी की फ़िज़ा है। आप एक गरीब इंसान हैं, इसलिए मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगी कि आप भी अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा जहेज़ दें, लेकिन इतना ज़रूर दीजिएगा कि आगे जाकर इसे देवरानी जेठानियों के ताने ना सुनने पड़े। वो एक साफ गो औरत थी, इसलिए साथ साथ अब्बा को कहकर चली गई, जबकि मैं दिल थाम कर रह गई थी। मेरा एक बाप जो कि मस्जिद का इमाम था, उसके मामूली सी तनख्वाह थी। ऐसे में वो मुझे इतना जहेज़ कैसे दे सकता है? इस परेशानी के बायस मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अम्मा परेशानी से कहने लगी, कैसे शादी करेंगे मलिहा की? इसके ससुराल वाले तो पैसे वाले हैं। आप अपने बराबर के लोगों में ही इसका रिश्ता तय करते हैं। अब्बा कहने लगे, सबसे पहले तो इसका रिश्ता करना ज़रूरी है, क्योंकि तुम जानती नहीं हो कि अगर आसेब के मामलात लड़कियों के साथ हो जाएं तो सारी ज़िंदगी पीछा नहीं छोड़ते। वो तो शुक्र है कि हमारी बेटी के बारे में किसी को पता नहीं चला। इस बात पर भी अम्मा अब्बा शुक्र अदा कर रहे थे, लेकिन मैं उस दिन परेशानी से छत पर अकेली खड़ी रो रही थी। मैं सोचती कि लड़कियों के माँ बाप भी किस कदर मजबूर होते हैं। उन्हें शादी भी करनी होती है और इस गुर्बत की जंग से भी सारी ज़िंदगी लड़ना होता है। फिर उस दिन स्कूल में मेरा आखिरी दिन था। सब बच्चों ने मुझे तोहफे तोहफ़ दिए, क्योंकि मेरी शादी होने वाली थी। प्रिंसिपल ने एक सैलरी इजाफी दी थी, क्योंकि मैंने वहाँ बहुत अच्छा पढ़ाया था। मैं उनका शुक्रिया अदा करते ना थक रही थी, लेकिन क्या जानती थी कि वापसी के सफ़र में हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। जब मैं घर जा रही थी तो मुझे अपना पर्स मामूल से ज़्यादा भारी लग रहा था। मैं हैरत से सोने लगी कि इसमें इतना वज़न कैसे हो गया। अब स्टॉप पर खड़ी थी, इसलिए पर्स को टटोल कर भी नहीं देख सकती थी। फिर घर जाकर मैंने पर्स रख दिया और मैं ये बात भूल गई थी। लेकिन शाम में मैं अपने पर्स में कोई चीज़ ढूंढने लगी तो अचानक ही मेरी नज़र उस काले रंग की थैली पर पड़ी जो मेरे पर्स में रखी थी। मैं हैरान थी कि ये किसने दिया है, क्योंकि सारे बच्चों के तोहफे तो मैंने खोल कर देख लिए थे। फिर जैसे ही मैंने उस थैली को खोलकर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें रखे खूबसूरत सोने के जेवरात जो यकीनन मेरे नहीं थे। मैं अपना धड़कता हुआ दिल महसूस कर रही थी, क्योंकि इतनी खुशी शायद मुझे अपनी ज़िंदगी में नहीं हुई थी। अच्छी खासी तादाद में जेवरात थे और उन्हें रखने वाला कौन था ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानती थी।
ادھر اماں مجھے آوازیں دیے جا رہی تھی. انہوں نے مجھ سے کوئی چیز منگوائی تھی لیکن میں نے وہ کسی قیمتی چیز کی طرح سنبھال کر رکھ دیے. جیسے ہی رات ہوئی تو ابا اپنی چارپائی پر بیٹھے تھے. میں نے دیکھا سب سو چکے تھے. ایسے میں ابا کو بہت سارے زیورات دینا چاہتی تھی. جب میں نے ان کے سامنے وہ قیمتی چیز رکھی تو ابا حیران رہ گئے تھے. یہ کیا ہے بیٹا؟ یہ کہاں سے ملے ہیں؟ وہ کچھ پریشان لگ رہے تھے. پھر میں اداسی سے کہنے لگی، ابا جب کوئی کسی کی زندگی میں آتا ہے تو وہ کسی خاص رشتے سے آتا ہے یا پھر اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اور میری زندگی میں آنے والا وہ جنزاد اپنے کسی خاص رشتے سے میری زندگی میں آیا تھا. اس نے تو وہ رشتہ نبھایا لیکن میں نے نہیں. وہ میرا اچھا دوست بن گیا تھا اور آج اس نے اپنی دوستی کا حق پورا کر دیا. ابا بات سمجھ گئے کہ یہ جنات کا قیمتی خزانہ ہے جو مجھے اسی جنزاد نے دیا ہے جو کہ بہت نیک تھا، میرا محافظ، ایک شاگرد بن کر میری زندگی میں آیا تھا. لیکن اس نے تو مجھ سے دوستی اس قدر نبھائی کہ مجھے اپنی ہی نظروں میں شرمندہ کر دیا. پھر دھوم دھام سے میری رخصتی ہوئی تھی لیکن گھر کے حالات بھی بدلنے میں وقت نہ لگا کیونکہ میں نے بہت کم جہیز لیا تھا. باقی ابا نے مجھے سونے کے زیورات بھی دیے تھے اور وہ سارے زیورات میں نے اماں کو دیے تھے تاکہ وہ میری باقی بہنوں کو رخصت کرنے میں بھی انہیں استعمال کر سکے. آج بھی اس راستے سے گزرتی ہوں تو کبھی کبھار میری نظریں اسی جنزاد کو تلاش کرتی ہیں، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ اب کبھی بھی میرے سامنے نہیں آئے گا کیونکہ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جس دن میری شادی ہو جائے گی اس دن کے بعد سے وہ میرے سامنے آنا چھوڑ دے گا. اسی بات کو سوچ کر میں اکثر اداس ہو جاتی ہوں.